देख लीजिए, हमने लास्ट ईयर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में 5 पिलर बनाए थे। उन 5 पिलर में से क्वेश्चन आया है कि नहीं, सारे क्वेश्चन इन्हीं पिलर्स में से आए नहीं, इन्हीं टॉपिक्स को हमने बाद में पढ़ा भी था। दिस इज नॉट माई दिस ईयर्स नोट, दिस इज माई लास्ट ईयर्स नोट्स। फर्स्ट, हैज अ क्वेश्चन कम ऑन ई गवर्नेंस? आप ही लोग बताएंगे हाँ या ना? यस, Yes, sir. ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन आ गया। हैज अ क्वेश्चन कम ऑन हेल्थ? Yes, यस। sir. हैज अ क्वेश्चन कम ऑन हंगर, malnutrition and hunger? Yes, Vaishvi. Yes, sir. राहुल, हंगर पे क्वेश्चन आया है इस साल? यस सर। हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम कैसा होना चाहिए उस पे क्वेश्चन आया है। फोर्थ, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स वाइटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लस एक क्वेश्चन आया है ऑन गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस का भी आपको नोट्स दिखाता हूं, वहां पर हमने गुड गवर्नेंस की बात करी थी। और कौन सा क्वेश्चन है गुड गवर्नेंस पे, एक बार आपको दिखा देता हूं। सो जो हमने पिलर लास्ट ईयर पकड़े थे वो इस साल भी क्वेश्चन आया है। और ऐसा नहीं है कि नए बच्चे ये सोचेंगे कि मैं आपको ई गवर्नेंस इस साल नहीं पढ़ाऊंगा। गवर्नेंस आई विल टीच, डोंट वरी, बट आई विल ऐड सम न्यू थीम्स विच विल बी रेलिवेंट फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके। अब कुछ टॉपिक्स स्टैटिक हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ आपको समझा देंगे, पुराना वाला नोट्स देख लीजिएगा। कुछ नया सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं हुआ है, कुछ नया एनजीओ में नहीं हुआ है। एनजीओ टॉपिक उस रेलिवेंट इसलिए था क्योंकि देयर वाज अमेंडमेंट टू दी विच एक्ट, मुस्कान? FCR। FCRA, yes, there was an amendment to FCRA, that is why NGO notes needed to be amended। उसके बाद कुछ नया NGO में नहीं हुआ है। वो टूल किट और वो सब कुछ हमने इस नोट्स में कवर कर लिया है। जो भी ये ट्विटर पे टूल किट प्रोटेस्ट, मैन्युफैक्चर प्रोटेस्ट, वो सब इस नोट्स में हो गया है। अगर कुछ नया हुआ तो ऐड कर लेंगे, बट आई थिंक इन द लास्ट 1 ईयर नथिंग न्यू हैज बीन एडेड जो हमारे नोट्स में ऑलरेडी नहीं है। सो दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक, स्टेक होल्डर्स ऑफ डेवलपमेंट, इसमें these two topics we will not be covering in this year's class. I will just be covering the notes, but I will be adding new stakeholders of development. आपके पे सवाल क्या पूछा है? चैरिटेबल ट्रस्ट, but I will be adding 2 more new stakeholders of development which may be asked next year. Okay, now so first and foremost, governance से जो भी क्वेश्चन आया है that we have covered in the pillars. गुड गवर्नेंस पे कौन सा सवाल आया है? लेट मी शो। ये पढ़िए। ऋषिका, प्लीज रीड क्वेश्चन 3। Yes, sir. The doctrine of democratic governance make it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. Discuss. Can you people identify this topic is from which part of the syllabus? दो पार्ट्स हैं सिलेबस के। Yes, sir. Which two? Sir, governance and role of civil services in democracy का reforms. See, two things are asked. One is democratic governance simply means good governance. But good governance के लिए क्या है? Public perception of integrity and commitment of public servant becomes absolutely necessary. So role of civil services in a democracy. The public perception of integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. So what is the role of civil services in a democracy? Let us see. पहला ही पिलर जब कराया था तो वी डिस्कस दिस फर्स्ट टॉपिक
role of public service. Now we had discussed what is their role. They are agents of social change. They play both negative and positive role. इसी पे सवाल पूछ दिया उन्होंने. Okay. Plus civil service servants should have three kind of values. They should have professional competency, they should have emotional intelligence, and they should have foundational values. So they are asking that they should have absolute integrity. Public perception should be of absolute integrity. So we had discussed what is the role of civil servant. जो इस क्वेश्चन में आपको लिखना था, that is they have three roles. Protective, that is to maintain law and order, और यहाँ पर जो है there should be upholding of Article 14. There should not be any discrimination based on religion, race, caste, sex or gender, etc. Adjudication of dispute, here there should again be special relief for the vulnerable section. So protective function पहला हो गया, और इसके साथ आप एग्जाम्पल लिख देंगे. Then welfare schemes to be implemented. Here welfare schemes का क्या वो होना चाहिए? There should be it should reach the last man in the line. अंत्योदय, सही व्यक्ति को पहुंचना चाहिए. Schemes should be designed for being accessible, especially for women, for transgenders. Schemes should be helpful for दिव्यांगजन. आप इसमें लिख देंगे कि पब्लिक बिल्डिंग्स एक्सेसिबल होनी चाहिए. एग्जाम्स शुड बी कंडक्टेड विच आर एक्सेसिबल टू दीज पीपल. उसके बाद फैसिलिटेटिव सोशियो इकोनॉमिक चेंज. सोशल चेंज में आप ऊपर वाली ये सारी बातें लिख देंगे. दे आर एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, बट यू विल ऑल्सो मेंशन, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस, तो कुछ चैलेंजेस हैं. तो जैसे right now this is procedure oriented, there is hierarchy, there is corruption. Biggest challenge is there is corruption, there is conflict, there is attitudinal issue, colonial legacy है, license era है, resistance to reform है. biggest challenge जो है, आप corruption लिखेंगे, उसके बाद reforms में ये वाला diagram बना के आप आंसर को कंक्लूड कर लेंगे. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, रिक्रूटमेंट में रिफॉर्म चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन का मेथड चेंज होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए आरटीआई, सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, प्रोफेशनल एंड मॉडर्निटी के लिए यू विल राइट व्हाट इज मिशन कर्मयोग. यहाँ पर ये इतना लिख के इसमें आपको 10 में से 7 मार्क्स मिल जाते हैं अगर मिशन कर्मयोगी से इस आंसर को आप एंड कर दें. ओके, so what is the expectation from civil services? These 3 expectations you will be writing. Challenges क्या है? Corruption एक challenge है, there is conflict, there is attitudinal issue, there is also structural hierarchy issue, there is procedure oriented. फिर रिफॉर्म में पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि 10 ही मार्क्स का क्वेश्चन है. स्ट्रक्चरल, रिक्रूटमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसे करके, और साइड में एग्जाम्पल लिखते जाने हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में क्या करना है. तो सेकेंड ARC ने बोला कि देयर शुड बी कंडक्शन ऑफ बैचलर्स डिग्री कोर्सेज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस. ओके, वेरियस कमिटीज लाइक होता कमिटी ने बोला है कि एप्टीट्यूड और लीडरशिप का टेस्ट लीजिए. प्रमोशन और इसके लिए प्रमोशन शुड बी 360 डिग्री अप्रेजल बेस्ड. ओके, अकाउंटेबिलिटी के लिए मैंने एग्जांपल दे दिया. प्रोफेशन के लिए मिशन कर्मयोगी या नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके 6 पिलर आपको करा दिए. लिखने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, बाकी आप एग्जांपल में देख सकते हैं, सभी के एग्जांपल नोट्स में लिखे हुए. ओके, सो दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन. ओनली थिंग इज यू हैड टू आइडेंटिफाई कि रोल ऑफ सिविल सर्विस से है और हमको आंसर स्ट्रक्चर कर देना था. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी?
Yes. Anybody having any doubt in this question, please ask. चैलेंजेस में रेड टेपिज्म भी आ जाता है ना? हाँ, रेड टेपिज्म जो है आपके एटीट्यूडनल इशू में भी है और स्ट्रक्चरल इशू में भी है, क्योंकि यहाँ पर देयर इज अ हायरार्की। आप देख रहे हैं क्लरिकल स्टाफ से डिपार्टमेंटल ऑफिसर, उससे फिर डीएम, फिर हायर सबऑर्डिनेट, फिर ये वापस जा रहा है, इसकी वजह से रेड टेपिज्म हो जाता है। Question number 3 is done. Now, Citizen Charter has been a landmark initiative in ensuring citizen-centric administration, but it is yet to reach its full potential, identify the factors hindering the realization of its promise, and suggest measures to overcome them. So, question is on very simple syllabus से आपके citizen charter के realization में क्या challenges या road blocks हैं, and suggest measures to overcome them. So, last year governance में citizen charter कराने के बजाय we did it together in ethics, right? Yes or no? Because content wise it is same, only thing is ethics में आपको और ज्यादा point मिल जाते हैं, utilization of public fund से आप जोड़ लेते हैं, you link it to several other topics. So let us discuss citizen charter question. क्या पूछ रहा है? What is the factor identify in realization of its promise and suggest measures to overcome? So what is citizen charter? The term charter refers to written commitment. ये आप introduction में लिखेंगे. Is my screen visible to everybody? Yes, sir. So what is charter? It is क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुछ वादे किए थे आपने. हाँ भाई, वादे किए थे, इसका मतलब ही है सिटीजन चार्टर रेफर्स टू रिटन कमिटमेंट. सिमिलरली सिटीजन चार्टर रेफर्स टू रिटन कमिटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट अबाउट क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी. Okay, and what is the benefit? Generation of public trust in the institutions. Principles आप चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई ये प्रिंसिपल थे या ये वादे थे, क्वालिटी ऑफ सर्विस, चॉइस, स्टैंडर्ड, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, और कुछ नए भी जुड़ गए हैं आज के समावेश में. सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं है, देयर आर न्यू फैक्टर्स इन सिटीजन चार्टर. बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये वादे क्यों नहीं पूरे हो पाए. सो बेसिकली वी हैव टू राइट इश्यूज और चैलेंजेस. तो भाई दे आर नॉट फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसल्टेंसी प्रोसेस. ये चार्टर जो है हम एक फॉर्मल प्रोसेस के तहत बना देते हैं. आप सभी लोगों को कुछ सिटीजन चार्टर के बारे में पता है कि क्या होता है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल जिससे आप सभी को आइडेंटिफाई हो जाएगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू पोस्ट ऑफिस? आप में से कितने लोग गए होंगे? सभी लोग पोस्ट ऑफिस एक ना एक बार तो. Yes, sir. और अगर नहीं गए हैं तो अगली बार जाइएगा और देखिएगा पोस्ट ऑफिस में जो काउंटर्स लगे हैं उसके सामने एक बोर्ड लगा होगा सिटीजन चार्टर का. उसमें वो बहुत सारे, म्यूट कर लीजिए जिनका भी माइक, उस बोर्ड पे वो बहुत सारे प्रोमिसेस लिखे होंगे, जैसे कि वो फॉर एग्जांपल स्पीड पोस्ट इतने दिन में कर देंगे, मनी ऑर्डर इतने दिन में कर देंगे, उसकी प्राइस लिखी रहती है. फिर नीचे लिखा रहेगा कि किस, अगर आपकी ये चीज इतने दिन में पूरी नहीं होती है तो आप किसको कंप्लेंट करें. उसके बाद ग्रीवियांस ऑफिसर 1, ग्रीवियांस ऑफिसर 2, इनके नाम और नंबर दिए रहते हैं ताकि आप उस पर कंप्लेन कर सके. तो इसको कहते हैं सिटीजन चार्टर. एक चार्टर जिसमें कि आप अपने जो सर्विस से रिलेटेड प्रोमिसेस है उसको आप सिटीजन्स को बताते हो. तो सिटीजन चार्टर में क्या क्या चीजें होंगी भाई? उसमें ग्रीवियांस रिड्रेसल का एक हायरार्की होना चाहिए. क्लियर एंड विजिबल डिस्प्ले ऑफ नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ऑफ गवर्न. फिर मेजरेबल आउटकम्स होंगे भाई. अभी जैसे मैंने कहा कि स्पीड पोस्ट जो है तो विद इन 4 days ये चीज तय की गई होगी वहां पर. या आप बैंक में जाओगे तो वहां पर लिखा होगा कि भाई बैंक में जो है एनईएफटी विल बी डन विद इन दिस मच टाइम, योर ड्राफ्ट विल बी मेड विद इन दिस मच टाइम. बैंक में भी सिटीजन चार्टर लगा रहता है. किसी भी सरकारी संस्थान में आप जाएंगे तो सिटीजन चार्टर लगा हुआ है.
although there is right now no लीगल बैकिंग टू इट, लीगल बैकिंग मतलब कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया हमने सिटीजन चार्टर में, ये एक चार्टर है बस, बेसिकली दीज आर प्रोमिसेस ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो फर्स्ट कंसल्टेशन नहीं की जाती है और आप वादे दे देते हैं, भाई 4 दिन में हो सकता है स्पीड पोस्ट जो है किसी नॉर्थ ईस्ट के गांव में नहीं पहुंचेगा, तो आप 4 दिन में लिखिए कहाँ के लिए, विद इन 500 किलोमीटर्स। अब ये कौन बता पाएगा, तो ये जो है अगर आप बॉटम लेवल तक कंसल्टेंसी करेंगे, जो आपका डाकिया है जो लेके जाता है, उससे पूछेंगे कि भाई क्या क्या समस्या आती है आपको लास्ट तक पहुंचाने में, तब आप जो टारगेट सेट करेंगे दैट टारगेट विल बी फुलफिल्ड, अदरवाइज इट विल रिमेन प्रोमिसेस। इसीलिए एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन भी नहीं किया जाता। ये चार्टर आपने लगाया है उसका क्या मतलब है, आप सभी लोग पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाते होंगे तो आपको पता ही है कि व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द एम्प्लॉयज देयर, दे आर नॉट अवेयर, देयर इज नो एटीट्यूडनल चेंज, वर्क कल्चर में कोई चेंज नहीं है उनके विथ रिस्पेक्ट टू द सिटीजन चार्टर, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं कराई है आपने, आपने एक बोर्ड टांग दिया सिटीजन चार्टर का, फिर रिसोर्स भी आपको देना पड़ेगा। भाई आप चाहते हैं कि विद इन 45 मिनट्स ड्राफ्ट शुड बी मेड इन बैंक, तो बैंक में स्टाफ होने चाहिए, बैंक में हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, बैंक में जो है बाकी के मटेरियल जैसे पेपर वगैरह है वो सब अवेलेबल होना चाहिए, तब तो आप ये मेंटेन कर पाएंगे प्रॉमिस। बट रिसोर्स हमेशा जो है वो क्रंच रहता है, ठीक तरह से तो टॉयलेट और बेसिक एम्यूनिटीज आपने बनाए नहीं है, और आपने वादे ऐसे कर रखे हैं कि हम इतनी दिन में ये कर लेंगे, हम प्रोफेशनली ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ओके, प्लस लोगों को भी इसके बारे में जागरूकता नहीं है, जैसे अभी इसी क्लास में एवरीबडी डिड नॉट नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड सिटीजन चार्टर। आपको सिलेबस तो पता था पर ये क्या होता है आपने कभी रियल लाइफ में शायद बोर्ड भी नहीं देखा होगा इसका। वाई? बिकॉज इनकी ड्यूटी है उसको प्रमोट करना, ठीक है। या फिर कई बार जो फोन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन्ड होते हैं, वो फोन नंबर जो है उस पे आप फोन मिलाएंगे तो इट वुड नेवर फंक्शन। ओके, फिर देर इज नो रिवॉर्ड पिनलाइजेशन मैकेनिज्म, कि अगर मान लीजिए ये चीजें अगर नहीं अचीव हो पाती हैं तो देर इज नो रिड्रेसल टू दैट। ओके, अब आप रिफॉर्म्स की बात करेंगे कि रिफॉर्म क्या क्या होना चाहिए, तो रिफॉर्म की बात हमने आगे करी है, नॉट इन दिस टॉपिक बट इन क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस, व्हाट आर द रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड। सेल्वम मॉडल नहीं, सेवोत्तम मॉडल। सो सेवोत्तम मॉडल का रिफॉर्म चाहिए, प्लस ये दो रिफॉर्म, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट ऑफ सिटीजन्स टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज बिल, ये जो दो रिफॉर्म आप जरूर लिखेंगे। ओके, इन सिटीजन चार्टर दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स। इसमें क्या है, आप बाई लॉ अपने सर्विसेज का स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, राइट ऑफ सिटीजन्स टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इसका आप कानून अभी तक 2011 से पेंडिंग है तो इसको कराइए, और विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। विसिल ब्लोअर जो है एनोनिमस होके अभी कंप्लेंट नहीं कर सकते। मान लीजिए मुस्कान को अपने ही फैक्ट्री में विसिल ब्लो करना है तो वो एनोनिमस होके नहीं कर सकते, जो उनका ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर है उसको जरूर पता होगा कि ये मुस्कान ने कंप्लेन करी है। अब इससे क्या समस्या होगी? यस, हैज देयर बीन किलिंग ऑफ वेरियस विसिल ब्लोअर्स इन द पास्ट? Yes, sir. Yes, we have seen various examples in which whistleblowers have been killed. So ये दो आपको रिफॉर्म लिखने थे। आप सत्येंद्र दुबे, क्या लिखा हुआ है, सत्येंद्र दुबे जी, इनका NHAI के एक इंजीनियर थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा था, इनको भी मार दिया गया था। एंड सेवरल अदर एग्जांपल्स, एक आपके इंडियन ऑयल के स्कैम को भी पकड़ा था, उनको भी मार दिया गया था। ओके, सो these two reforms you will mention, इनके कुछ कुछ पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे और कंक्लूड कर लेंगे दैट सिटीजन चार्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ओके,
कि सिटीजन चार्टर उससे उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है और रिफॉर्म क्या है. ऑल्दो दिस टॉपिक वी हैव डन इन एथिक्स, क्योंकि एथिक्स में भी सिटीजन चार्टर मेंशन्ड है आपके सिलेबस में. एक्सपेक्टेशंस यही है कि भाई ये जो डायग्राम बना है आइडियल सिटीजन चार्टर में क्या होता है, कॉन्क्रीट होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, कंसल्टेटिव होना चाहिए, रिसोर्स रिक्वायर्ड होना चाहिए, मेजरेबल आउटकम्स होने चाहिए और देयर शुड बी अ हायरार्की फॉर ग्रीवियंस. ये एक्सपेक्टेशन है. ये एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल होती है, वो इश्यूज हमको लिखना है, ये प्रोमिसेस जो हम नहीं फुलफिल कर पाते. और उसके बाद रिफॉर्म्स में राइट ऑफ सिटीजन्स टू टाइम बाउंड पब्लिक सर्विस बिल एंड योर whistleblower protection act. These two are the reforms. Clear this question? Yes. Yes, sir. So we have done question 3. We have done question 4. ई गवर्नेंस पे करते हैं, फिर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और पॉवर्टी एंड मेल न्यूट्रिशन पे आएंगे. ओके. सो e-governance is not just about routine application of digital process in service delivery. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context, evaluate the role of interactive service model of e-governance. यानी e-governance में जो interaction हो रहा होगा उसका रोल को इवेल्युएट करिए और क्यों इंटरेक्शन की जरूरत है. ई गवर्नेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका मतलब ये भी है कि देयर शुड बी इंटरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मान लीजिए कुछ सर्विस ली तो उसका आपको फीडबैक देने के लिए आपके मोबाइल पर आया, या फिर मान लीजिए सपोज आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तो जैसे आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करा तो आपकी डेट आ गई कि ऑन दिस डे यू हैव टू गिव योर ड्राइविंग. ड्राइविंग से पहले कौन सा टेस्ट होता है, दैट रिटन टेस्ट, व्हाट इज इट कॉल्ड, लर्नर्स लाइसेंस में. Yes, sir. आई डोंट नो अब लर्नर्स लाइसेंस अभी भी होता ही होगा, Yes. है ना. तो बेसिक पहले आपको एक बेसिक ट्रैफिक साइंस वगैरह और केस, कुछ केसेस होते हैं भाई, ढलान पे आप क्या करोगे, इस पे क्या करोगे, स्कूल आएगा तो क्या करोगे, ऐसे करके एक बेसिक टेस्ट होता है उसका. आई डोंट नो आप में से कितने लोगों का लाइसेंस बना हुआ है. Yes, sir. ऐसे एक व्यक्ति का टेस्ट दिया था ये, या ब्रोकर को पैसे दे दिए थे. नहीं सर, दिया तो स्ट्रिक्ट है आपको बहुत. सो ई गवर्नेंस में बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई सरकारी सुविधा गैस सिलेंडर घर पहुंचा दे ऑनलाइन बुकिंग करके, आप पासपोर्ट बनवा लें ऑनलाइन वो करके. अक्रॉस दिस प्रोसेस यू शुड हैव अ इंटरैक्टिव प्रोसेस कि भाई अब 7 दिनों में आपका ये होगा, उसके 10 दिनों बाद ये होगा, योर यू कैन ट्रैक योर डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा व्हेन इट इज बीइंग सेंट. तो इसको कहते हैं इंटरैक्टिव प्रोसेस. लेट अस सी अगर हमने ई गवर्नेंस में ऐसा डिस्कशन किया है कि नहीं किया है. So first and foremost, World Bank defines it as the use by government agencies of information technology such as internet, computing, or wide area network to transform relation with citizens, businesses, and other arms of the government. So now it is a move towards smart governance, user-friendly governance, और quick, preferable relative response. Responsive होना चाहिए. इसी पे सवाल आया था कि there should be interactive process. नाउ इन्होंने पूछा कि वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, तो ये स्टेजेस पे ही आपको आंसर लिखना था. भाई आप वेबसाइट बना लीजिए, ब्रोशर बना लीजिए, फिर इंटरेक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स कैन कम्युनिकेट वाया ईमेल, कस्टमर केयर सर्विस, फीडबैक. फिर ट्रांजैक्शन जो है, बुकिंग एंड पेमेंट ऑफ वेरियस सर्विस, बिडिंग एक्सेट्रा शुड बी डन. ट्रांसफॉर्मेशन, that is Umang app, highest stage of e-governance which utilizes e-governance technology for relative interaction and transformation between government and stakeholder. इसी पे सवाल पूछा था ना. Yes, yes or no.
भाई इंटरेक्शन होना चाहिए। और उसके एग्जाम्पल हमने दे दिए, ई सेवा, ई डिस्ट्रिक्ट, ई कोर्ट। इसके कुछ चैलेंजेस हैं, टेक्निकल चैलेंज जैसे सिक्योरिटी कंसर्न, सोशल चैलेंजेस जैसे लैंग्वेज बैरियर, ये आप जरूर लिखेंगे क्योंकि ये इंटरैक्टिव होने में बहुत समस्या उत्पन्न करता है। अगर 6% लोगों के पास कंप्यूटर एक्सेस है, अकॉर्डिंग टू पीएमजी दिशा स्कीम हमने इसीलिए चलाई थी कि रूरल एरियाज में कंप्यूटराइजेशन हो सके, लेकिन लैंग्वेज बैरियर है, पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो स्पेसिफिक लार्ज स्केल अवेयरनेस, कंप्लीट ट्रांजिशन टू ई गवर्नेंस में बी एक्सक्लूशनरी। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको सेंटर्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, खजाना प्रोजेक्ट है, इसके एग्जांपल, दीज आर ऑल 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप लिखेंगे। ओके, और कंक्लूड कर देंगे आपसे आंसर में। तो बेसिकली हमको ये स्टेजेस लिखने थे जो वो मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं। वो मॉडल बनाने के लिए हमको यही स्टेजेस लिखने हैं कि भाई पहले तो आप वेबसाइट या ब्रोशर, ये फर्स्ट स्टेज है जिसका की इंफॉर्मेशन है सिंपल डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर इंटरेक्शन के लिए बनाइए, उसके बाद ट्रांजैक्शन बनाइए, फिर ट्रांसफॉर्मेशन बनाइए। इसको कहते हैं इंटरैक्टिव ई गवर्नेंस मॉडल। अगर आपने ये टॉपिक पूरा पढ़ा होता तो लास्ट में आप यहाँ पर एक ग्रीवियांस रिड्रेसल भी डाल देते कि भाई रिड्रेसल का भी करने का तरीका होना चाहिए। लेकिन टेक्निकल चैलेंजेस और सोशल इश्यूज जरूर लिखिएगा, ठीक है। एंड देन कंक्लूड विथ दी हांगकांग एग्जांपल और भारत का खुद जो एग्जांपल है, दैट इज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। स्टेट का भी आप चाहें तो कर्नाटका का एग्जांपल दे सकते हो, या अब तो कई सारे, फॉर एग्जांपल इन बिहार आल्सो दे हैव स्टार्टेड होम डिलीवरी ऑफ योर रजिस्ट्रेशन पेपर्स, लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, वो भी एग्जांपल आप दे सकते। ठीक है, क्लियर है। Public charitable trust have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital issues. तो हमने प्रेशर ग्रुप तो नहीं किया था, लेकिन एनजीओ जरूर किया था। एनजीओ में हमने वहां पर बात करी थी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनजीओ। इज दिस विजिबल, एनजीओ डॉक्यूमेंट? यस सर। सो टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ एनजीओ देखिए, व्हाट इज एन एनजीओ, आप यहाँ पे इसके बजाय वहां पर आप डिटरमाइन कर देंगे व्हाट इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, यू कैन राइट इट इज चाहे आप खाली एनजीओ हटा के और लिख देंगे आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दैट परस्यू एक्टिविटीज टू रिलीव द सफरिंग, प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, कुछ नहीं दिक्कत है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में भी यही डेफिनेशन काम कर जाएगी, कोई समस्या नहीं है। आप प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट भी लिखेंगे तो भी ये करते हैं ना, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। यस भाई, बिल एंड मिलिंडा गेट्स पेड़ लगाने के लिए भी पैसे देते हैं ना, कि नहीं देते? प्रोवाइड बेसिक सोशल सर्विसेज, डू द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट प्रोवाइड? फॉर एग्जांपल ये जो मेनी ऑफ यू मस्ट हैव स्टडीड फ्रॉम सरस्वती शिशु मंदिर, इज इट रन बाय अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट? यस, दयानंद एंग्लो वैदिक, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इन दैट। या फिर कई सारे मेडिकल कैंप्स कराते हैं पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जितने टेम्पल्स हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर रजिस्टर्ड एज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन जो है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में ही होता है। दे आर एग्जेम्प्टेड इवन फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स जस्ट लाइक एन एनजीओ। तो ऐसा मत सोचिए कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब कुछ और हो गया, ये तो एनजीओ नहीं है, सेम एनजीओ टॉपिक का हमको मटेरियल वहां पे लिखना था। अब ये जो क्वेश्चन पूछा था कि दे डील विथ सर्टेन वाइटल इश्यूज, तो वो हमको वाइटल इश्यूज का हिंट कहाँ से मिलता? यहाँ से, प्रमोट और डिफेंड और फाइट फॉर पर्टिकुलर कॉज, एग्जांपल ग्रीन पीस। ऑपरेशनल एनजीओ एग्जांपल अक्षय पात्रा, मिड डे मील, हंगर वगैरह के लिए। प्रथम एजुकेशन के लिए, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। विमेन के लिए, टू इंप्रूव एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, सेवा
ब्रेक थ्रू इंडिया, विमेन ऑन विंग्स, चिल्ड्रन के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल इशू, वल्नरेबल सेक्शन चिल्ड्रन, सो क्राई, बचपन बचाओ। देन सिविल लिबर्टीज पे PUCL वगैरह, करप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल इशू, इसके लिए देयर इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। देन ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ, ये जो जितने नाम लिखवाए हैं इंपॉर्टेंट NGOs, ये आपको वाइटल इश्यूज में वहां पर चिपका देने, all of them are equally valid to be put there. Okay. So what are the important vital issues? You get a hint from here. Promote and defend or fight for freedom of speech and expression, Greenpeace. Implement various schemes like midday meal, social schemes, education के लिए, women के लिए, children के लिए. Then to fight against poverty and corruption. Then provide relief during disaster. For example, Goonj, Saman Foundation, शीरोज एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए है। कुछ चैलेंजेस आप लिख सकते हैं NGO से रिलेटेड। ये फीचर्स का अगर, क्योंकि ये 10 मार्क का सवाल था तो फीचर्स को हम नहीं लिख सकते थे, बट इफ यू वांट, क्योंकि इसको लिखने में बहुत कम समय लगेगा, तो आप इसको एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये लिखा है डोनर बेस्ड नहीं होता, डोनर बेस्ड, तो ये डोनर बेस्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गई। ओके, सो दे आर गवर्नड एंड मैनेज्ड बाय ओन मेंबर्स, ऑटोनोमस, नॉन गवर्नमेंट है, पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। ये आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद। ओके, एंड देन यू कैन मेंशन द इंपॉर्टेंट वाइटल इश्यूज दे आर अंडरटेकिंग, बट आप ये भी लिखेंगे कि कुछ इनके रोल्स में चैलेंजेस भी है। अच्छा, इसमें हमने ओके, अगर आप वहां से डायरेक्ट नहीं लेते तो यहाँ फंक्शंस और रोल में भी हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट इश्यूज। टू रीच द लास्ट पर्सन इन द क्यू, अंतोगत्वा, प्रोटेक्ट द सिटीजन्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट डिटेंशन, पॉवर्टी एलिविएशन and rural development, champion the cause of vulnerable section, act as pressure group, back channel diplomacy, transparency and accountability। एक दो issues लिखने के बाद, भाई एक दो issue क्या है? lack of independence, this is the major issue for charitable institutions। भाई जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ओके, सो एक दो इसमें से आप इशू लिख देंगे, भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, और फिर रिफॉर्म में यू कैन मेंशन FCRA अमेंडमेंट। क्योंकि एक और इशू है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का कि भाई दे आर यूज्ड फॉर टैक्स इवेजन, दे आर यूज्ड एज शेल कंपनीज। आप उनको पैसा डोनेट कर देंगे थोड़ा बहुत और आपको ज्यादा बड़े अमाउंट का पर्ची काट के दे देंगे, फिर आप टैक्स डिडक्शन ले लेंगे अंडर सेक्शन 80D। तो दे आर ऑल्सो यूज्ड एज टैक्स इवेजन शेल कंपनीज। रिफॉर्म में आप FCRA लिख दीजिए, दैट इज गुड इनफ। इतने में आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। ओके, कंक्लूजन में लिख लीजिए इंडिया नीड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ NGO को हटा के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कर दीजिए, टू बी पार्ट ऑफ इट्स डेवलपमेंट सेक्टर। दैट कंप्लीट्स योर आंसर। भाई गवर्नमेंट की तरफ से क्या होना चाहिए? हैंड ऑफ ट्रस्ट, देश और चैरिटेबल ट्रस्ट, दे शुड बी they should not be obstructionists, they should be service providers and not merely obstructionists or activists। ये आप कंक्लूजन में लिख लेंगे। तो NGO की डेफिनेशन में आप चैरिटेबल ट्रस्ट कर दीजिए। फीचर्स आप ये दिखा सकते हैं, फीचर डोनर बेस्ड वगैरह। उसके बाद ये क्या फंक्शन करते हैं या रोल, उसको हमने डिस्कशन किया है। ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन मेंशन, दीज आर ऑल वाइटल इश्यूज। एग्जांपल के साथ आप मेंशन करेंगे, एक दो इश्यूज आप लिखेंगे, ज्यादा इश्यूज नहीं लिखेंगे आप वहां पे। यू विल मेंशन डेफिनेटली दैट there is a conflict of interest, lack of independence, tax and self evasion। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में FCRA, कंक्लूजन में they should be part of India's development sector। that concludes your answer। any doubt in this? Sir, no doubt. Okay, so now poverty and malnutrition create a vicious cycle adversely affecting human capital। what steps can be taken to break this cycle? so poverty आपके GS2 में भी है, poverty
GS3 में भी है, बट मेल न्यूट्रिशन जो है आपके सिर्फ GS2 में है, बेसिकली हिडन हंगर टॉपिक। हंगर और हिडन हंगर में क्या डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हंगर एंड हिडन हंगर? यस, यहां पर हंगर में देर इज फूड डेफिशिएंसी, आपको इनफ कैलोरीज नहीं मिल रहे हैं टू सस्टेन योर बॉडी, है ना। इन दोनों में रिलेशन क्या है, हंगर और पावर्टी में? कैन आई से दैट मेनी ऑफ द पावर्टी मेजरिंग इंडिकेटर्स यूज हंगर? फॉर एग्जाम्पल तेंदुलकर कमिटी, लकड़ावाला कमिटी, रंगाराजन कमिटी, क्या ये पावर्टी को डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैलोरीज दैट यू हैव टू कंज्यूम इन अ डे? Yes, sir. Yes, yes. So there is a relation that you measure poverty by measuring hunger. But malnutrition is a different issue. There is hunger as well as hidden hunger. ये टॉपिक जो है शायद कई लोग मिस कर जाएं. So what is hidden hunger? आपको आटा दाल चावल तो मिल गया, but will that make you healthy? Yes. What is required for fighting anemia, for fighting stunting, for fighting retarded growth? क्या चाहिए आपको? Yes. बताइए. Iron, magnesium. Iron, magnesium. Yes, Amita. What is required? Micronutrients, sir. Micro and macronutrients. Mac Yes. Macronutrients क्या होते हैं आपके? ये तो आपको मिल जाएगा खाने से. What are the 3 macronutrients? Protein, carbohydrates और फैट. ये तो आपको जनरली खाने से मिल जाता है. प्रोटीन भी नहीं मिलता, प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी है इंडिया में, बट जनरली कार्बोहाइड्रेट और फैट तो मिल जाता है आपको. यस और नो? बट हमको चाहिए Yes. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. यस, व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? विटामिन्स एंड मिनरल्स. minerals. For example, you require iron, you require zinc, you require विटामिन A, B, C, D जितने भी हैं, E, K भी है ना एक विटामिन K. What is the role of vitamin K? Yes. blood protein. Blood clotting. Blood Yes, clotting. it helps in clotting of blood. What is the disease when in a person genetically blood does not clot? Sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया में ये समस्या नहीं है. सिकल सेल एनीमिया में आपका आरबीसी के का शेप अलग बना हुआ है. Sickle cell is a different matter. The shape of the RBC is problematic there. Yes. Amita? हीमोफीलिया कहते हैं ना, जिसमें व्यक्ति का खून रुकता नहीं है एक बार कट गया तो. यस और नो? पिछले Yes, बैच sir. में डॉक्टर थे बहुत सारे, बैच में नहीं. हाँ. सो दैट पर्सन, आई डोंट रिमेम्बर क्या कहते हैं उसको, सम क्लोजिन फिब्रोजिन समथिंग इज मेड बाय ब्लड, जो वो जाली वाला शेप बनाता है to protect the blood from clotting. I don't know, there is a name to it, some gen something. उसमें विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है. विटामिन ई तो सभी को पता होगा, स्पेशली गर्ल्स. व्हाट इज विटामिन ई यूज फॉर? लगा के सोते होगे ना आप लोग. इट इज सम काइंड ऑफ ब्यूटी विटामिन, नो?
यस दीपेश। दीपेश नहीं, तो पता हो skin something, no, that it is some kind of like helpful to the skin, right? Okay, so anyways, so basically हिडन हंगर जो है इसी के लिए हम कौन सा अभियान चला रहे हैं? पोषण पूरा पोषण अभियान। यस, so there is an entire month dedicated in September or to पोषण। so we will discuss this hunger और hidden hunger और poverty जोड़ के करेंगे एंड कंबाइंड करेंगे poverty from economics perspective, क्योंकि वहां पर poverty जो है उसके डायमेंशन बढ़ जाते हैं। वी मूव टुवर्ड्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। भाई सिर्फ खाना खाने से व्यक्ति कोई पॉवर्टी नहीं खत्म हो जाती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करते हैं वहां पे। एंड वहां पर हम सोल्यूशन लिखेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ की। ओके, सो देयर द सोल्यूशन टू पॉवर्टी इज इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ आप इस आंसर में नहीं लिखेंगे बिकॉज दिस वाज आस्क्ड इन GS2 not in GS3, so here you will not refer to the solutions of GS3। यहाँ पर आप मिड डे मील की बात करेंगे, यहाँ पर आप ICDS की बात करेंगे। here you will talk about various schemes for mother and child, जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व सहयोग योजना, because it is very important for mother and child care, pre and post natal care, that is also very important to cover this poverty and malnutrition। यहाँ पर आप बात करेंगे भाई मैटरनिटी लीव भी बढ़ा दी गई है, ऑल दोज थिंग्स। पोषण अभियान, फोर्टिफाइड फूड की बात करेंगे। फोर्टिफाइड फूड क्या होता है? यस, घर में जो है ज्वार की रोटी बनेगी तो नहीं खाएंगे आप, लेकिन रागी बिस्किट्स खाएंगे, है ना, राइट? some processed company will be giving you ragi biscuits, so you will be eating ragi biscuits। but fortified food क्या है? for example golden rice is fortified with vitamins, है ना। कई सारे स्टेट्स में मिड डे मील में दूध दिया जाता है जस्ट टू कवर malnutrition। ओके, सो फोर्टिफाइड फूड में महाराष्ट्र ने एक पैकेज्ड फूड भी निकाला था, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो गया था वो, तो दैट इज ऑल्सो अ सेपरेट मैटर। सो दैट इज ऑल्सो डेफिनेटली वन ऑफ द स्टेप्स टू फाइट malnutrition। सो मदर एंड चाइल्ड केयर जरूर इसमें कवर करना है। ओके, अभी इसका नोट्स अभी तक भेजा नहीं है टीम ने, तो हम मिलेट्स पावर्टी का दे सकते हैं क्या? किसका? मिलेट्स एंड जो इंटरनेशनल मिलेट्स है। हाँ, नेशनल मिलेट मिशन, यही लिखवाया तो है आपको, स्टेप्स में लिखवाया तो है, नेशनल मूविंग टुवर्ड्स कोर्स फूड्स, नेशनल मिलेट्स लिखवाया है। सर हाँ बोलिए। सर सक्षम आंगनवाड़ी वो भी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, आंगनवाड़ी से रिलेटेड आप ICDS वही है, ICDS का ही रिफॉर्म्ड वर्जन है ना सक्षम आंगनवाड़ी। ICDS इज रन बाय आंगनवाड़ी। ओके, सो इसके बाद पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। इन अ क्रूशियल डोमेन लाइक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, India should play a vital role to contain the adverse impact of marketization। आपके सिलेबस में क्या टॉपिक मेंशन्ड है? Regarding public health, what is mentioned? याद कर लो भाई, सिलेबस आप लोग याद कर लो एक बार। यस, how many of you remember the syllabus? So मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर आई हैड डिस्कस पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम फ्रॉम ऑल 3 स्टेजेस, दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर। जब मैंने करंट अफेयर्स में आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा डिस्कस किया था,
there as a comprehensive topic I took all the three, primary, secondary और tertiary. अभी हमने सेकेंडरी और टर्शरी को मार्केटाइजेशन से बचाने के लिए कौन सी स्कीम चला रहे हैं, जो कि मैंने पिलर पे भी लिखा था, वही स्कीम पे ये सवाल है. Which scheme are we running for secondary and tertiary healthcare in India? World's largest scheme. आयुष्मान भारत. आयुष्मान भारत. वेरी गुड. तो आयुष्मान भारत में जो आपको इंश्योरेंस मिलता है, दैट इज फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑल्सो और सेकेंडरी एंड टर्शरी ओनली? Yes. So there is a scheme PMJ, PM जन आरोग्य योजना. इसके दो कंपोनेंट है, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर. प्राइमरी हेल्थ केयर में देर इज वेलनेस सेंटर्स. यहाँ पर आप आयुष की भी बात कर सकते हैं, आयुष आपका योगा वोगा वाला आयुष. और सेकेंडरी हेल्थ केयर में यू विल टॉक अबाउट द इंश्योरेंस स्कीम. क्योंकि ये क्वेश्चन यही पूछा, इनहेंस द रीच ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम एट द ग्रास रूट लेवल. वन ऑफ द वेज इज दिस. Plus, you can mention that number of AIIMS has been tripled in the last 10 years. Number of medical colleges have been increased, etc., etc. All those things. You can also mention about telemedicine. You can mention about which app is there for telemedicine. ors.gov.in. इस पे आप किसी भी अस्पताल का OPD की बुकिंग कर सकते हैं. Okay, so these kind of initiatives mentioned. इस बार हम हेल्थ केयर को कॉम्प्रिहेंसिवली फिर से कवर करेंगे, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा भी वो रिडंडेंट हो गया है जो हमने लास्ट टाइम किया था. सो इन गवर्नेंस वी विल डेफिनेटली डिस्कस हेल्थ एंड एजुकेशन दिस ईयर कॉम्प्रिहेंसिवली. ऑल्दो न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैंने डिस्कस किया था लास्ट ईयर, बट वी विल डू इट इन अ न्यू वे in this year's classes. So that completes all our questions. Please write based on the feedback again. Okay. And if you have any doubts, do send it to me. Your evaluated answers I will be sending by tomorrow. 4-5 लोगों के आंसर्स अभी चेक नहीं है, गौरव, ऋषिका, वैश्वी और आपका मुस्कान का आई थिंक आई चेक, बट आई विल स्टिल सी. कल आपको आंसर्स भेज दिए जाएंगे. बट अगर आज के फीडबैक का आपको लगता है कि नहीं मैंने ऐसे आंसर नहीं लिखे, तो फिर से लिख लीजिएगा. प्लीज डोंट सेंड इट अगेन फॉर गेटिंग चेक, बट डू राइट इट अगेन. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप ये क्वेश्चंस ऐसा अब लग रहा होगा आपको कि वी कैन राइट इट. यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर द व्यू दैट ये लिख सकते हैं हम क्वेश्चन? यस सर. हाँ यार, ये तो पिछले साल गवर्नेंस के कराए हुए नोट्स हैं, और इस साल भी उससे जब बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि बेसिकली वी आर ऑन द राइट ट्रैक. द पर्पस ऑफ EMP इज गेटिंग सॉल्व, कि भाई कोई भी ईयर का कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं. ठीक है, अभी तो गवर्नेंस इस साल हमने करा नहीं. ओके, बट वी विल डू इट because we have to do it for next year. That should be valid for next year, so we will be doing it. So Sir? that हाँ बोलिए. सर एक PHCs भी होते हैं ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जो डिस्ट्रिक्ट वो यही है वेलनेस सेंटर की जो बात करी है हमने. यस सर. उनको अपग्रेड कराने की बात कर रहे हैं. और Yes, जब sir, हम यहाँ पे प्राइमरी सर हेल्थ वो- केयर की बात करेंगे ना, तो ये कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करेंगे कि उनमें क्या स्थिति है. 90% वैकेंसी है डॉक्टर्स की वहां पे, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा. उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. वी वेंट टू वन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, उनके पास सुई लगाने से पहले दे पुट नो सम काइंड ऑफ डिसइंफेक्टेंट स्पिरिट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सम अल्कोहल बेस्ड स्पिरिट, वो भी नहीं था. वो हम बाहर से लेके गए थे उनको देने के लिए. तो उनके पास ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को अपग्रेड करना है. 1.5 लाख वेलनेस सेंटर्स हमको बनाना.
Okay, so that is all for today. Thank you for your time and patience. हाँ बोलिए. सर लाइक थर्ड क्वेश्चन में कीवर्ड था डिस्कस एंड सेकंड एंड फर्स्ट क्वेश्चन में कीवर्ड था कमेंट, तो सर डिस्कस में भी चैलेंजेस लिखने हैं ना? इस पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी कि डिस्कस का क्या मतलब होता है, चैलेंज का क्या मतलब होता है, क्रिटिकली डिस्कस का क्या मतलब होता है, इलुसिडेट का क्या मतलब है, इलेबोरेट का क्या मतलब है. देखा नहीं था आपने? सर सर मतलब चैनल पे है ना सर, यूट्यूब पे? होना चाहिए, बट फिर भी मैं एक ब्रीफली, अभी जो आपने पूछा डिस्कस और कमेंट, सो डिस्कशन हमेशा क्या होता है, यू से समथिंग, सामने वाला ऑल्सो से समथिंग, राइट? यस सर. डिस्कशन वन वे तो नहीं होता, तो इसमें आप जो आंसर लिखेंगे वो इस फॉर्मेट में, प्रोज और कॉन्स इस फॉर्मेट में लिखेंगे, मतलब वन ऐसा होगा इस फॉर्म में. ठीक है. कमेंट में क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी पूरे कमेंट दे देगा, उसके बाद आप उसका काउंटर व्यू लिखेंगे, है ना? तो बेसिकली सिर्फ आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, डिस्कस और कमेंट में यही डिफरेंस होता है. डिस्कशन इज लाइक अ कम्युनिकेशन, सो इट इज ऑलवेज रिटन इन दिस टेबुलर फॉर्म. इस पॉइंट का उल्टा पॉइंट आप यहाँ पे लिखते हो सामने सामने. यस सर. हाँ. अब मान लीजिए लिखा होता एग्जामिन, तो उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया एग्जामिन इज, यू रिमेंबर अ डॉक्टर, तो आप डॉक्टर को अपने सारे सिम्टम्स बताओगे कि भाई क्या समस्या है. सो यू राइट द चैलेंजेस फर्स्ट और इश्यूज फर्स्ट व्हेनेवर अ क्वेश्चन इज गिवन एग्जामिन. फिर जब आप डॉक्टर को सारी समस्याएं बता देते हो तो डॉक्टर आपको क्या देता है? यस, सॉल्यूशन. प्रिस्क्रिप्शन. हाँ, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, स्टेप्स, स्टेप्स टू रिजॉल्व दिस. फिर डॉक्टर कुछ आपको उसमें सजेशन भी देता है ना, भाई पानी ज्यादा पीना, ज्यादा चलना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आप यहाँ पर सजेशन भी लिखते हो इन एन एग्जामिन क्वेश्चन. वो स्टेप तो लिखोगे ही जो किए गए हैं या जो लेने चाहिए, बट आप वो भी लिखोगे जो नहीं किए गए हैं. डॉक्टर आपको दवाई तो देता ही है 1 2 3, लेकिन कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी चीजें भी बोलता है ना, मीठा कम खाइए, आलू कम खाइए, वॉकिंग ज्यादा कीजिए, है ना? somebody with diabetes, doctor says this over and above galvasmet, glimepiride, these are medicines I think for diabetes. तो मेडिसिन तो लिखते ही है वो, तो ये तो मेडिसिन आपने स्टेप में लिख दिया, लेकिन सजेशन भी लिखेंगे कि बाद में आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत ना है, तो वो भी आपको लिखना होता है इफ अ क्वेश्चन इज ऑन एग्जामिन. बाकी देयर इज अ वीडियो ऑफ वेयर आई हैव डिस्कस क्रिटिकली, कमेंट, इलेबोरेट, इलस्ट्रेट, सब पे डिस्कशन किया मैंने, एक बार देख लीजिएगा. यस सर. Any more doubt? Whenever I say thank you for your time and patience, then somebody asks doubt. आप अभी बोल दीजिए कोई डाउट है तो. सर लाइक सेकंड क्वेश्चन में पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, सर अगर हम इसको स्टार्ट करें इसका तो फिर विशेष साइकिल आपको पेपर, आपको आपके नोट्स में बनवाया है, हाउ पॉवर्टी and poverty creates a vicious cycle. If you are poor, will you be cutting down on your food cost? यस सर. उसको कहते हैं फूड स्क्वीज. अब अगर आपने खाना ठीक से नहीं खाया तो आप मेल न्यूट्रिशन है. वेदर यू विल बी प्रोडक्टिव? नो सर. No. If you are not productive, whether you will have better economic opportunities? अगर नो आप सर. बीमार रहते हैं, आप कमजोर, अगर आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो वापस से वेदर यू विल रिमेन पुअर और वेदर यू विल बिकम रिच. रिमेन पुअर. हाँ, तो ये विशेष साइकिल पॉवर्टी का बनाया है मैंने. यस सर. लास्ट ईयर हमने 2 साइकिल्स की बात करी थी. इकोनॉमिक सर्वे एक वर्चुअल साइकिल की बात करता है और विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी, दोनों बनवाया था. वर्चुअस साइकिल ऑल्सो एंड विशेष साइकिल ऑल्सो. Okay, so that is all for today. Thank you for your time and patience.